Hello everyone. Let us begin with ESI analysis today. So phase 1 is over, phase 2 exam is coming up, and with that approaching exam, it becomes important for us to understand the past 3 year papers a little more thoroughly in order to make a decision as to what is to be done in the future. How do you prepare? What do you do? What do you not do? वीडियो के स्टार्टिंग में ही आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद सर्टन थिंग्स बेस्ड अपॉन माय ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर. यू कैन हैव अ डिफरेंट कंक्लूजन इफ़ यू वांट, बट मैं अपना कंक्लूजन आपको बता देता हूँ. माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट, व्हाट आई फील दैट कैन कम और कैन नॉट कम इन द एग्जामिनेशन. अगर हम कंक्लूड करें, रिमेंबर कंक्लूजन है, पूरा जब पेपर देखेंगे तो भी ये कंक्लूजन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो एंड इट कैन डिफर अ लिटिल बिट एज वेल. In the paper last year, there was heavy focus on PIB 247, which is nothing but PIB current affairs. There was heavy focus in ESI on reports. We did not see anything specific related to ESI syllabus. Syllabus में से हमने कुछ नहीं देखा. There was also some focus on economic survey और ये डेप्थ में क्वेश्चंस थे. तो इन तीन चीज़ों पे मेजर फोकस था. Now, when I'm saying reports, then I mean other kind of things as well. Annual surveys, budget, ये सारी चीज़ें भी मैं साथ में attach करता हूँ. There was not enough focus on the syllabus, especially in the objective part. In descriptive part, we saw focus on the syllabus, but nothing of that sort in the objective part. What I expect to happen this year, based upon phase 1 and based upon the kind of U-turn that RBI examination has made, their focus on PIB is going to stay. That is what I expect to happen, because PIB is just too big a thing to be left out. And any kind of current affairs related to Indian economy, related to social issues taking place in India, PIB is the prime source for that. So even if they want to skip it, they can't skip it. Along with that, annual surveys, which include economic survey, budget, and various other smaller surveys, uh, including something like census, which happened a long time back, but there used to be regular questions from this from the census as well. National Family Health Survey, State of Forest Report. I think they might go back to those things as well. So I'm expecting questions to come from PIB. I'm expecting questions to come from survey. I'm also expecting questions to come from the syllabus, not only in the descriptive part, but also in the objective part. मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं तो 30 में से 4-5 क्वेश्चंस सिलेबस के हो सकते हैं. ओके. From the reports, last year we saw that they moved towards a lot of unknown, unimportant, less heard of, less read out reports. But this year I'm expecting them to stick with the major reports. So this is a change that you can make. Now it is a risk on your part. If you've already read all kinds of reports that I have given you, or whatever classes you are referring to, then make sure that you revise. Do not skip them just because I told you so, or just because you think that they might not come. If you've read it, reread it, revise it. If you have not yet read those kinds of reports, and if you've just covered the major ones, then I would recommend you to stick with the major ones, because the chances of them being asked are more this year, according to me. I might be wrong, but this is my conclusion based upon last year's analysis, what was the change last year, and this year's analysis. Because there is some kind of a sync between phase 1 and phase 2 when it comes to level of the exam. And we saw that happening over the years. Therefore, I'm expecting something of that kind to happen this year as well. So PIB, we will see a lot of questions from PIB. PIB current affairs is going to help you in the descriptive part also, even when the questions are from the syllabus. Survey, we are certainly going to see some aspects being asked. ESI syllabus, descriptive has been important. In objective also, we might see 5-6 questions. Reports, the major ones like human development report and various other reports, we might see some kind of questions, and we have seen some in 2024 as well. But we saw some questions from unknown and less important reports as well that we might not see this year. We might not. Chances are comparatively lesser. Okay. That is it about the conclusion. Let's now get into the micro analysis of ESI.
It will take about 15, 20, 25 minutes max, but you will have a good understanding of what exactly happened in last year's exam. Now there were 20 questions of 2 marks each, and there were 10 questions of 10 marks each, 1 mark each. These 10 questions were majorly from PIB, and these 20 questions were a mix of PIB and reports. That is what we saw last year. Survey and budget being included in this one. Okay, this is what happened last year. Let's go about it one by one. First, अगर हम देखें तो there was a paragraph and there were 4 questions based upon that paragraph. We can't go through the paragraph, but we saw a change last year. We might see that repeating this year as well, wherein they gave you a paragraph. They called the report as report X. They did not name the report. They wanted you to identify the report based upon the paragraph, which was a very difficult job because the paragraph itself was not so thorough or so clear that you could identify the report in black and white. So that made the job difficult to some extent. But at the same time, despite not knowing about these reports, I saw that there were some logical questions as well. So question number 1 to 4 dekhte hain. The first question was factual. Who is the director of report X mentioned in the above paragraph? Somik V. Lal. Expected yet difficult because identifying कि ये word development report है, that itself is difficult. And remembering the latest directors, ऐसी चीज़ें हम बहुत पीछे छोड़ चुके थे RBI जैसे एग्जाम में. But that kind of question was asked. Okay. Question number 2 was more logical. Why? I will tell you why. The question says the 3I strategy mentioned in the report in the above paragraph is related to what? Financial inclusion, industrial infra, middle income trap, rural urban connectivity, innovation ecosystems. अगर आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ोगे, मैं आपको पैराग्राफ पे लेके जाऊं, तो आपको रियलाइज होगा that the paragraph again and again and again talks about middle income trap. यहाँ पे word trap भी यूज़ किया है. They have not used the word middle income trap specifically, but they talked about the middle income trap very clearly in the entire paragraph. कि countries कहाँ पे अटक जाती हैं एक point पे आके, they are not able to grow further, GDP per capita gets stuck. They've talked about that. Therefore, even if you don't know what the report is about, even if you don't know what report is it, you could have answered this question. So out of 4 questions, the second question was doable by sheer common sense, understanding of the paragraph and logic. And the same happened in question number 3 and 4, and that is what is interesting here, because आपने रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. एग्जाम के बाहर आके स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये रिपोर्ट तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कौन सी रिपोर्ट थी. बट एग्जामिनर वो शायद चाहता ही नहीं था. एग्जामिनर को पता था कि आप ये रिपोर्ट कभी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस दे देते हैं आपको. दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैपन्स इन द एग्जाम, एंड इट हैपन दिस ईयर इन फेज 1 एज वेल. देयर वर लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको यही पैराग्राफ पढ़ा दूं और यही पैराग्राफ आ जाए. That will never happen. I'm not making the paper, but you have to, the objective, one of the major objectives of learning is to improve your common sensical knowledge. Okay, if you can't increase your awareness, your ability to use common sense in the exam, and if you keep relying on whatever you have read in black and white, you will never be able to clear the exam. This was one prime example of that. Question number 3 पे आते हैं. Repetition of the same question. According to the report X mentioned in the above paragraph, many developing countries are stuck in dash trap. Repetition of the second question, something that we have not seen in a long time, but हमने यहाँ पर देखा था. Question number 4, which of the following steps are taken by India to come out of the trap? Logical, broad-based question. Economic diversification, addressing income inequality, fostering sustained growth. पैराग्राफ में भी कुछ और कीवर्ड्स यूज करके बात की गई है, बट इंडिया हैज़ बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इवन इफ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस, यू कैन टेक एंड यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड गेस कि चांसेस आर हाई ये तीनों ही सही होने चाहिए. दैट इज़ हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन योर एग्जाम. अदरवाइज 100% सर्टेनिटी का वेट करते रहोगे तो out of 50 you will be able to score maximum 20-25, not more than that. You can't have certainty more than that, just like in civil services exam. So आपको calculated guess, some kind of
risk where you see that the probability of getting the answer right is higher, you will have to take those risks in the exam. Okay, तो यहाँ पे चांसेस हाई थे कि यार इंडिया इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेन्ड ग्रोथ, इस पे तो काम कर ही रहा है, तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं होने चाहिए तीनों, किसी को एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल है. सेकेंड जो पैराग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन 8, दैट वाज आल्सो a similar kind of question where you had to identify the report. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट थी. दिस वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड रिपोर्ट. इसमें क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, एट द सेम टाइम डिफिकल्ट थे. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाट विल बी द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2024 एज पर रिपोर्ट मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ. अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके ऑप्शंस भी बड़े क्लोज हैं. ओके, जिसने लास्ट ईयर पढ़ा होगा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने फेज़ 1 से पहले आपको एक पूरा चिट्ठा दिया था जिसमें सारी मेजर रिपोर्ट्स, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर दे सेइंग अबाउट इंडियन ग्रोथ, व्हाट आर दे सेइंग अबाउट ग्लोबल ग्रोथ, वो सब मेंशन था उसमें. तो पढ़ा होगा तो रियलाइजेशन होगा यार 3 के आसपास ही है, बट एग्जैक्टली कितना है, 3.1 है, 3.2 है, 3.4 है, डिफिकल्ट है. तो इफ़ यू वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिपोर्ट, मुश्किल है ये क्वेश्चन आंसर करना, अनलेस if you identified the report then it was super easy. If you could not identify the report, the risk is very high. कि आपने 3.1 डाल दिया, आंसर निकला 3.2, या 3.2 डाल दिया, आंसर निकला 3.1. The chances of that happening are very very large. So probability of getting your answer wrong is also high. Sixth question, where was the Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality launched from? अब ये लास्ट ईयर की जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस में, उसमें लॉन्च किया गया था. पीआईबी करंट में कराया भी गया होगा, लिखा गया होगा, बट इवन देन remembering this kind of thing, because a lot of initiatives are taken at these conferences every year, remembering every kind of initiative is difficult. तो ये difficult question था, factual था और difficult भी था. Identify incorrect statement with respect to Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality. The incorrect one is it is housed and anchored by नीति आयोग. No, G20 की जो मीटिंग हुई थी इंडिया में उसमें ये मेंशन किया गया था, वहाँ से इसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. बट अगेन difficult question. If you've not read about it, then it would be difficult. Question number 8. Which term mentioned in the Y report correctly describes the interconnected risks and growing uncertainty, raising the potential for a global crisis? Again, not an easy question. If you've not read the report, it would be difficult to answer. If you've read the report and if you're able to identify the report, it would be a super easy question. So that is where the difference was created. Some students were able to score 35 plus, some students got stuck at 30 because of these kind of questions. तो ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से जिसने रिपोर्ट पढ़ी होगी या a person who could identify the report could answer 2 or 3 of these. Another person could not answer even one. यहाँ पे gap create हुआ था. But I don't see the same kind of thing happening this year because I see the pattern to be changing a little bit. So I don't see these kind of questions coming back this year. But I see in-depth, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से in-depth questions पूछे गए थे phase 1 में, I see in-depth questions coming from major reports and major surveys. तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. ओके, थर्ड जो पैराग्राफ था वो सर्वे से रिलेटेड था. तो दिस वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हमने सर्वे से इतने सारे क्वेश्चंस देखे, इसीलिए दैट इज़ वाई दिस ईयर आई कवर्ड द एंटायर सर्वे इन डिटेल. चैप्टर वाइज कवरेज है समरी के साथ साथ, एनरोल्ड स्टूडेंट्स को वो पता है, वो इसीलिए कवर किया गया था क्योंकि देखा गया कि यार बहुत डेप्थ में पूछ रहे हैं, और फेज़ 1 में पूछा भी, डेप्थ में जाके पूछा भी. एक्चुअली बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे, बट अल्टीमेटली दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सर्वे. तो और लास्ट ईयर भी था, तो मुझे लगता है इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे से 2-3-4 क्वेश्चंस डेप्थ में पूछे जा सकते हैं. अच्छे से पढ़ के जाइएगा. फैक्ट्स स्पेशली एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा वो घुस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सर्वे. दे माइट डू द सेम अगेन इन फेज 2, दे माइट मूव टू अनदर एरिया एज वेल. सो यू हैव टू रीड द एंटायर सर्वे. ओके, क्वेश्चंस क्या थे, क्वेश्चंस देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप. अगर आपने सर्वे पढ़ा है, दिस वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन. ओके, डेप्थ में पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बट अगर आपने सर्वे एक बार भी पूरा पढ़ा है, दिस वॉज अ सुपर ईजी क्वेश्चन. नहीं पढ़ा है, दिस वॉज अ सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके,
What is the average growth rate of agriculture over the last 5 years as per the economic survey? Again, पढ़ा है अगर, बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर आपने डेप्थ में सर्वे पढ़ा है, डेप्थ में नहीं पढ़ा है, बहुत मुश्किल पेपर, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे आंसर. ओके, यू विल एंड अप गोइंग रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है. लॉजिकल की मैं बताता हूँ. And this is where you can get an edge, even if you've not read the survey, even if you're losing out, you feel you're losing out, you can get edge on these kind of questions. The economic survey notes that the Indian economy needs to generate an average of nearly 78 lakh jobs until 2030 in the dash sector to cater to the rising workforce. अब हमें पता है, अगर आपने ESI सिलेबस ठीक ठाक पढ़ा है, majority of our working population of our labor workforce is still employed in agriculture. So if we want to grow, we have to move people out of agriculture, which means not just service but also industry. तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्रीकल्चरल ठीक है, बट हमें एक और बेटर ऑप्शन दिया गया है नॉन फार्म सेक्टर. तो चांसेस आर वेरी हाई कि सर्विसेज की जगह नॉन फार्म होना चाहिए. और इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करनी है, 78 लाख जॉब्स, तो खाली सर्विस सेक्टर, खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नहीं कर पाएगा. तो दिस गिव्स अस अ क्यू और दिस गिव्स अस अ चांस ऑफ अप्लाइंग कॉमन सेंस कि यार मैंने नहीं भी पढ़ा है तो भी आई थिंक नॉन फार्म के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट आर हायर, तो लेट मी स्टिक विद इट. इस तरह से आप कैलकुलेटेड गेस बोल लो, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन रॉन्ग रिस्क बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो. But these kind of common sense questions you have to try and target as well. You have to keep looking for them in the examination. Okay. But it was a good question. Nice question. According to the survey, next question, the Indian economy has indeed transitioned from an agrarian focus to a more dash structure. Fill the gap. Now, the same question was also asked, very similar question was also asked in this year's phase 1. So, repetition hai. And students who have been looking at previous year papers thoroughly, जिनको याद हो जाते हैं previous year papers, उनके लिए ये आंसर करना आसान है. लगता था इसमें कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बट नहीं, आंसर इज सर्विस ओरिएंटेड. वहाँ पर बोलता है कि जॉब्स के लिए हमें नॉन फार्म सेक्टर में जाना है, ना कि सर्विस सेक्टर में जाना है. बट ये बोलता है कि ट्रांजिशन इंडियन इकोनॉमी ने एग्रीकल्चर से सर्विस में किया है, जो हम पढ़ाते भी हैं सिलेबस में कि वी हैव मूव्ड दैट जम्प्ड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज बाईपासिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर. उसकी बात यहाँ पर हो रही है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. तो इकोनॉमिक सर्विसेज 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस, इन डेप्थ क्वेश्चंस. नेक्स्ट पे आते हैं. Next paragraph was for 2 questions, and this was Lancet report, progress on SDGs, a difficult report and a difficult set of questions. Why? Because एक तो ऐसी reports normally पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं. दूसरा factual questions पूछ लिए इन्होंने, जिसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. देखते हैं questions. In how many indicators India has fallen behind of the total 33 SDG indicators included in this study? नहीं पता होगा यार, किसको पता होगा? नॉर्मल सी बात. अनलेस PIB में मैंशनड हो एक पैराग्राफ में, नहीं होगा, मुश्किल है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, हाउ मच % ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफ टारगेट फॉर 8 क्रूशियल इंडिकेटर्स? अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है अनलेस यू रेड द रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The study results point to an urgent need for India to increase the momentum on 4 SDG goals, which is not amongst the 4 goals. This was easy. Why? Because paragraph में दिया हुआ था electricity access, that India has improved its SDG goal on electricity access, और specifically mention भी था कि poverty, hunger और इन सब में gender inequality, good health, इन सब में हम पीछे गए हैं, electricity access में हम आगे गए हैं, improve हुए हैं. So this was an easy question out of this. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफ टारगेट फॉर 8 क्रूशियल इंडिकेटर्स. इन विच स्टेट्स दीज ऑफ टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड? तो एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पूछा है, मोस्टली पूछा है. अब एक कॉमनैलिटी दिख रही है यहाँ पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा. अब देखोगे ये सारे ही इंडिया के सेंटर में लोकेटेड हैं. सेंट्रल ईस्ट, सेंट्रल वेस्ट. जैसे MP बिल्कुल सेंटर में आ गया, छत्तीसगढ़ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं अब हम, झारखंड भी उधर ही है, बिहार भी उधर ही है, उड़ीसा भी उधर ही है. वो पूरा एक बेल्ट है या फिर पूरा एक क्लस्टर है
which has not been doing well when it comes to major indicators under SDGs. तो चांसेस आर हाई कि यार 1 2 3 4 5 सारे ही होने चाहिए, क्योंकि किसी एक को हटाना बड़ा मुश्किल है. बट इवन देन टेकिंग अ रिस्क इज एक्चुअली रिस्की आउट है, टू रिस्की, बिकॉज रिपोर्ट की बात हो रही है. रिपोर्ट हो सकता है इन 4 की जगह, इन 5 की जगह खाली 4 का नाम लिखा हो, इन्होंने 5वीं खुद ऐड कर दी हो. चांसेस ऑफ द क्वेश्चन गेटिंग रॉन्ग आर हायर. अब इस ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में मार्क नहीं करना है. द लर्निंग दैट यू गेट इज मार्क फॉर रिव्यू रखो ऐसे क्वेश्चन को, सो दैट यू नो दैट यू कैन कम बैक. पेपर आपका पूरा हो गया, उसके बाद वापस आओ, देखो कि कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं और मेरा कितना स्कोर बन रहा है. अगर 35 प्लस बन रहा है आउट ऑफ 50, देन नो नीड टू टेक सच रिस्क्स. अगर बहुत कम जा रहा है, 30 से नीचे जा रहा है, देन यू नो दैट यू आर प्रॉबेबली आउट ऑफ द रेस एज इट इज़. तो इसीलिए रिस्क ले लेते हैं और कोई चांस ज़्यादा मेरे पास है नहीं. फिर भी टेक ऑब्जेक्टिव रिस्क्स, टेक रैशनल डिसीजंस, डू नॉट टेक uncalculated emotional risks when it comes to questions like this, but also keep them aside so that you know कि अगर आपका स्कोर बहुत कम बनता है, then you have to come back to these kind of questions and try and take your chance. Okay, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर था. उस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द इंडेक्स, इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जा सकता. In which areas, according to the report, highest reduction has been observed? Political, educational, health and survival, A and B, A, B and C. मुश्किल क्वेश्चन है. It is not that easy. Although हमें पता है भाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में तो इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तो हमने एलिमिनेट कर दिया. जैसे ही हमने ये एलिमिनेट किया, हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया. जेंडर गैप में, पॉलिटिकल में तो कुछ नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट, वी नो दैट. तो हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन दो बचते हैं. एजुकेशन में वी नो दैट द नंबर्स हैव ऑलवेज बीन इम्प्रूविंग. हेल्थ में भी आयुष्मान भारत के बाद इम्प्रूव हुए ही हैं नंबर्स, तो थोड़ा सा मिक्स रहता है. बट हेल्थ में क्या है, नंबर्स लाइक IMR, MMR, सेक्स रेशो, इन सब में अभी भी हम बहुत ज़्यादा वी कैन से नंबर फजिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वी आर नॉट एबल टू शो दैट वी आर इम्प्रूविंग. उस बेसिस पे यू कैन स्टिल come to education, but difficult. I would not call it an easy question. Difficult question tha, unless you've read the actual report. Okay. Next question. Up to which financial year the scheme will be implemented and what is the total outlay of the scheme X? यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया गया कि आपको स्कीम का और रिपोर्ट के नाम नहीं बताए गए. Instead they're calling it as X or Y or Z, and now they're asking you कि पहले स्कीम आइडेंटिफाई करो अपने दिमाग में और फिर ये क्वेश्चन आंसर करो. ओके. अप टू विच फाइनेंशियल ईयर द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज़ द टोटल आउटले. अगर आपने न्यूज़ में या PIB में पढ़ा है तो आसान है, और अर्चना मैम ने मुझे बताया कि ये PIB में पढ़ाया गया था स्पेसिफिकली लास्ट ईयर, तो इट वाज अ डूएबल क्वेश्चन. हाउ मेनी ड्रोन्स आर टारगेटेड टू बी सप्लाइड अंडर द स्कीम, 15,000. अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. और इसमें यही होता है फैक्चुअल क्वेश्चंस में, या तो आप पढ़ के गए हो, याद है तो कर लोगे, नहीं पढ़ के गए हो या पढ़ के भी गए हो, कई बार याद नहीं होता है, then it becomes difficult. But schemes, all kinds of schemes, new schemes, old schemes, very important. You can't skip them, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आपका पूरा गेम पलट देते हैं. That is why they become so important. Okay. Who among the following can avail the benefits under NPS Vatsalya? NPS Vatsalya scheme है. Who of the following can avail the benefits? Indian citizens below 21, NRI below 18, overseas citizen below 18. अब यह जब NRI को बिलो 18 दिया है, ओवरसीज़ को बिलो 18 दिया है, तो इंडियन भी बिलो 18 होना चाहिए मेरे हिसाब से, लॉजिक बोलता है. तो उस बेसिस पे ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बट इवन देन नॉट एन ईजी क्वेश्चन इफ़ यू हैव नॉट रेड इट. अगर पढ़ा है वात्सल्य स्कीम के बारे में तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो फिर कुछ भी मुश्किल इस सवाल में नहीं थी. Question 22. Which of the following is not one of the key features of Prime Minister's National Relief Fund? जैसे PM केयर फंड था, नेशनल रिलीफ फंड था, उससे पहले हमेशा से ही रहा है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस आर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है. मुश्किल क्वेश्चन था क्योंकि नेशनल रिलीफ फंड के बारे में पढ़ना या उसको याद रखना नॉट दैट ईजी. ओके, यू नॉट सिटिंग फॉर UPSC एग्जाम, तो मुश्किल क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड अंडर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल. अब ये न्यूज़ में था अकॉर्डिंग टू मैम, तो इसलिए ये आंसरेबल था.
बट क्योंकि मैं पीआईबी पढ़ाता नहीं हूँ, उतना रेगुलरली पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मुझे लगता है ये देख के क्वेश्चन मुश्किल। बट अगर न्यूज़ में था करियर सर्विस पोर्टल, देन इट इज़ एन वेरी इजी क्वेश्चन। वाई? बिकॉज जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो स्कीम्स और पोर्टल्स दोनों साथ में चलते हैं, दोनों की ही आपको लिस्टिंग करनी होती है, दोनों ही ढंग से आपको पढ़ने होते हैं, तभी आप नंबर वहाँ पर खींच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, वन सेकेंड, इट इज दिस साइड, can avail benefits under agri infrastructure fund? A person producing pickles, person having flour mill, person cultivating mushroom in states of northeastern India. पीआईबी में था ये भी, पीआईबी में ऐसी चीज़ें रेगुलरली डिस्कस होती हैं, इसीलिए डुएबल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। Which of the following statement is incorrect with respect to eligibility criteria to avail benefits under stand up India scheme? यहाँ पे 51% की जगह 50% कर दिया गया था, मेकिंग इट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेसिक एरर क्रिएट किया गया इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेटमेंट, दैट मेक्स इट इजी, बट ओनली इफ यू हैव रेड इट। तो 1 मार्कर देखो क्वेश्चंस में एक यूनिक चीज़ दिखी है और ये इस साल भी कैरी फॉरवर्ड होगी टू अ लार्ज एक्सटेंट। It is very focused on PIB current, okay, schemes, portals, and majority of schemes and portals are discussed upon PIB, okay. When it comes to 2 markers, heavily focused on reports and schemes and surveys also, which includes economic survey. ये major division है. Now we might see this year in 1 marker some questions from ESI syllabus as well, and they might reduce some questions from these areas. Here also in 2 markers we might see 1 or 2 odd questions from the syllabus. And in reports how you can reduce your work is reports में major reports पे stick कर सकते हो, जो थोड़ी minor reports हैं, कम important लगती हैं, रेगुलरली न्यूज़ में नहीं है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लॉन्च करती हैं, उनको थोड़ा साइड में रख सकते हो या उनकी खाली समरी पढ़ सकते हो, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम अ स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब यहाँ पे लॉजिक बहुत अप्लाई हो रहा था, दैट इज़ वाई रीडिंग द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। इट इज़ नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो लॉजिक दैट अप्लाइज। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द eligibility criteria to avail benefits under the scheme, not the eligibility criteria. Small and marginal farmers with entry age between 18 to 40 years, कि अगर छोटे फार्मर हो, इस एज में हो, तो फिर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। Small and marginal farmer having cultivable land up to 2 hectares as per land records. छोटे फार्मर हो, ये प्रूफ किससे होता है कि आपके पास लैंड जो है वो कम है। Small and marginal farmer covered under any other statutory social security scheme. अगर छोटे फार्मर हो बट सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, तो फिर इस स्कीम में क्यों डालें, फिर तो एक्सक्लूड होना चाहिए, इसीलिए ये वाला डाउटफुल हो जाता है। नेक्स्ट 2 पढ़ते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नॉट ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एंड प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना, और किसी स्कीम में एनरोल्ड नहीं हो, लॉजिकल है, होना चाहिए इसमें एनरोल्ड। हु हैव नॉट पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसने टैक्स नहीं पे किया है, मतलब बहुत छोटा फार्मर है, तो फिर इसमें उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। लॉजिक के बेसिस पे यू कुड एक्चुअली कम टू द राइट आंसर विच वॉज ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए अगर क्वेश्चन देख के लगे भी, दिस इज आवर लर्निंग, क्वेश्चन देख के लगे भी कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस स्कीम, और आई can't recall these options in the scheme, these provisions in the scheme, even then you can come to the right answer in some questions. हर क्वेश्चन में नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में होगा, लेकिन आपने 2 नंबर भी छीन लिए, if even if you've stolen 2-3 marks out of 50 marks, that makes a major difference in your final score, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन से अपने आप को जज नहीं करना है, हर क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, to try and find if you can look for find something that can help you answer the question. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम टाइटल पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट पीएम प्रणाम टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना इंसेंटिव मिलेगा, 50%। नॉट अ लॉजिकल क्वेश्चन, अगर पढ़ा है तो आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।
ओके 2024 का पेपर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 पूछ लिया गया है। मुश्किल क्वेश्चन था कि डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोला जाएगा। अगर आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ी होगी तो शायद पढ़ा होगा ये, बट आई वुड कॉल इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, gross GST revenue for the month of May 2024 stood at dash. This was an easy question. Why? Because 1.73 lakh crore was all over the news last year. बड़े बड़े बैनर्स बने थे इसके ऊपर 1.73 लाख करोड़ नंबर के ऊपर, तो ये सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। ओके, तो ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क was launched in dash 2022 at Tokyo, Japan, comprising of dash countries. Difficult question, not an easy question. अगर पीआईबी में, ऑल्दो लिखा हुआ है पीआईबी में था, बट पीआईबी में था भी तो भी इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे फ्रेमवर्क्स वगैरह आपके एग्जाम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, इसीलिए उनको याद रखना बिकम्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हैं खुद भी, यार ये तो नहीं लग रहा आएगा तो छोड़ देता हूँ। और कब लॉन्च हुआ, कितनी कंट्रीज हैं, वो तो और भी मुश्किल है याद रखना। ओके, so 30 plus was a good score there because it was a difficult paper, but this was the easy part in ESI and this is where people stole marks. आप देख सकते हो कितने जगह पर easy लिखा हुआ है, वो दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ही समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टसल बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक अलग से चैप्टर है ईएसआई के अंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके ऊपर डिटेल में बात की गई है इसके बारे में। हाउ कैन वी क्रिएट द राइट बैलेंस बिटवीन देम? वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन एक्चुअली राइट अ गुड 15 मार्कर 600 वर्ड आंसर here. So this was certainly doable. Second question, discuss the challenges of youth unemployment, how can it be mitigated? Unemployment डिटेल में पढ़ा हुआ है कोर्स के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होता है वो बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, फिर घुस सकते हो बॉडी में कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, व्हाई आर वी विटनेसिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग द कंट्री, और किस तरह से फाइनली उसको कम किया जा सकता है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में राइट काइंड ऑफ करिकुलम, कनेक्टिंग द colleges and universities with the industries, calling more and more industries into India in the form of FDI, ease of doing business. We can talk about entrepreneurship. We can talk about so many things and we can write so many schemes here. So this was again an easy question. Third question, 5 key digital initiatives introduced in budget. Again a simple question, budget से direct question जो मैंने आपको बोला था पूछे जा रहे हैं। इसका बी पार्ट भी था, व्हाट डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 7.5 नंबर के हो गए और ये दोनों 15 नंबर के हो गए। ओके, तो इसमें फ़ायदा ये है 2 लिखने में कि यार आपका एक कम अच्छा हुआ तो भी आपको ऑन एन एवरेज अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये बहुत अच्छा लिख दिया तो 7.5 में से आपको 5 दे दिए, ये आपने कम अच्छा लिखा तो 7.5 में से आपको 4 दे दिए, 3.5 दे दिए, तो आपके ओवरऑल नंबर अच्छे आ गए। यहाँ पर अगर थोड़ा वीक लग रहा है कोई एक तो फिर उसको छोड़ सकते हो, यू कैन नॉट आंसर ऑल द 3, यू हैव टू पिक अप एनी 2। 10 मार्कर में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। हाउ कैन रूरल इंडिया प्रायोरिटाइज एंड प्रमोट विमेन लेड डेवलपमेंट? किस तरह से रूरल इंडिया में विमेन लेड डेवलपमेंट हो सकता है? स्कीम्स कितनी फोड़ सकते हो यहाँ पे? विमेन लेड डेवलपमेंट, जेंडर गैप, जेंडर बेस्ड बजटिंग, जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजेज ऑफ एआई इन द बैंकिंग सेक्टर, अगेन एन ईजी क्वेश्चन, फाइनेंस का क्वेश्चन ईएसआई में पूछा है बट एन ईजी क्वेश्चन। दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज वेरी स्पेसिफिक और दिख रहा था कि ये छोड़ेंगे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, और छोड़ा भी। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आपने ये कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेसिक स्पेसिफिक्स नहीं पता है देन इट वॉज नॉट वर्थ वाइल टू गेट इन टू दिस क्वेश्चन। इन बूस्टिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस तरह से, अब आप बेसिक तो लिख सकते हो ऊपर ऊपर से कि किस तरह से कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट स्पेसिफिक्स नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। यहाँ पे स्पेसिफिक्स प्रोवाइड करना ज़्यादा आसान है बिकॉज मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल पोर्टल्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स, multiple initiatives, MOUs, you can write all of those things here. So it was easier to do these. But all in all, a very easy paper in the descriptive part, a difficult paper on the objective part,
बट नाउ बिकॉज वी नो कि लास्ट ईयर क्या हुआ और उससे पहले क्या होता था, बेस्ड अपॉन फेज वन, कैन एक्चुअली यूज दिस वेरी वेल फॉर दिस ईयर्स एग्जाम. फोकस एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं. So use those focus areas, work on that. You still have enough time. You still can take it one by one step at a time. You can take it far away. You can actually clear the exam. Okay. Keep studying hard. That is all from my side. If you have any questions, don't forget to ask it in the comment section below. Enrolled students, I'm already meeting with you once every week in order to talk about your queries and how we need to move forward. We keep discussing. So keep working hard towards that as well. Okay. All the best. Bye bye.